कोई रीडर लेना पड़ेगा सेकंड चैप्टर के लिए। So Ankit, I think Khushbu ji was wanting to read. Khushbu Chokhani. Yes. So Khushbu ji, I have unmuted you, I hope. Khushbu ji. Khushbu ji, Hani, who else like to read on this point? पहले बोला था आगे शर्मा जी। Tanya ji, I have unmuted you. अगर आप मेंबर को चांस दोगे तो आ गया। आ गया। Shall I start? Yes, Didi. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures. It has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Yeah, go on, please go on. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken away from him. तो ये जो नीचे वाक्य लिखा गया है ये पुराने ग्रंथों में से उठाया गया है और हमारे साथ सदियों से चलता आया है। ये मैसेज ये है आपके लिए कि जिसके पास है उसको और मिलेगा और उसको अबंडेंस में मिलेगा, उसको भरपूर मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उसके वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। So whoever has will be given more and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken away. जो उसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा। अभी आगे बताएगा कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है। You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। इन ऊपर वाली लाइनों का मतलब तो यही है, पर इसमें एक पहेली है। इस पहेली को अगर आप सुलझा लोगे और इस मिस्ट्री को आप अनकवर कर दोगे तो आपके लिए जीवन, एक नया दुनिया, आपकी आंखें सब खुल जाएगा। the answer to the mystery that has eluded so many For centuries is for in one centuries, hidden word, gratitude. और इन सब चीजों का इस पहली का जो आंसर है वो आंसर है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, आभार, कृतज्ञता। अगर आपके जीवन में कृतज्ञता है तो सब कुछ है। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken away from him or her. तो जिसके जीवन में कृतज्ञता है उसको बहुत कुछ मिलेगा, उसको भरपूर मिलेगा, और जो जो इंसान कृतज्ञ नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they were. If, if you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with the gratitude is in these words. If you're grateful, you will be given more and you will have an abundance. ये From the बहुत Koran, sorry. ये पुरानी पहेली है। अगर जिस जिस ये छुपा हुआ था आज तक लोगों ने डिस्कवर नहीं किया कि जिस जिसके मन में कृतज्ञता है उसको जीवन में सब कुछ मिलेगा। और ये एक ऐसा मैजिक है जो आप अपने खून में, अपने रगों में बसा लोगे तो आप जीवन में हमेशा खुश रहोगे।
आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप हमेशा ग्रेटफुल रहोगे और आपके पास भरपूर वो चीजें आएंगी जो जो आपको चाहिए। From the Koran, the promise of gratitude is equally empathic. And remember when God proclaimed, "If you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe." तो ये ये बहुत ही अच्छा शानदार स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया है, अगर आप कृतज्ञ होगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, अगर आप कृतज्ञ नहीं होगे, अनग्रेटफुल होगे, कंप्लेन करते रहोगे, तो आपको उसका पनिशमेंट बहुत सिवियर मिलेगा, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। It does not matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of sciences and of the universe. कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस मजहब को फॉलो करते हो, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो, ये सारे जो शब्द हैं होली स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं, कुरान में लिखे हुए हैं, हर एक रिलीजन में लिखे हुए हैं, और ये एक नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ये ब्रह्मांड से बनाए हुए नियम है। जब जब आप ग्रेटफुल होगे आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, आप नहीं होगे तो जो है वो भी चली जाएंगी। थैंक यू तानिया, थैंक यू सो मच। सो अंकित, किसी नए पर्सन को चांस दे दीजिए प्लीज। एक सेकंड रवि भाई। श्रेया श्रेया शर्मा जी। Hello, am I audible? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक है, बोलिए। Thank you for making me read. Yes, Shreya ji, please go on. Yeah, it's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. सो ग्रैटिट्यूड, जो कृतज्ञता होती है, वो भी ब्रह्मांड के नियम के थ्रू ही एक्ट करती है। जैसा जैसा कल अपन ने सीखा था, समझा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, संकल्प से सृष्टि क्या होती है, आपने अगर वो चीज समझी है तो ग्रैटिट्यूड भी उसी तरीके से ही काम करता है। सामान्य सामान्य को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। जैसे सामान्य चीज सामान्य को आकर्षित करती है, वैसे ही कृतज्ञता काम करती है। अगर आपके जीवन में कृतज्ञता है, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में कृतज्ञता है, तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी वाइब्रेट होती है और वो ही नई चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो जब जब आपके साथ या आपके पास जो भी चीज है उसके लिए आप कृतज्ञ हो, वैसे ही आप और चीजों को आकर्षित करोगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हाथ मिला के काम करता है, हाथ मिला के काम करता है। श्रेया, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, सॉरी। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए श्रेया, प्लीज आप। Yes, am I audible? Yeah. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of these experiences. अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को मेरी नौकरी पसंद नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो परफेक्ट नहीं है, मैं अपने बिल नहीं पे कर पा रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर सकती, मैं अपने माँ बाप के साथ
रह नहीं पा रही हूँ, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा मेरे को बहुत दुखी करता है, मेरे नाक में दम करता है, मेरा जीवन बहुत बेकार है, मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही। अगर आप ऐसे भावनाओं के साथ रह रहे हो और जी रहे हो, तो आपको ऐसी चीजें और आपके जीवन में आकर्षित कर रहे हो, आप ऐसी चीजें आप अपनी लाइफ में और आकर्षित कर रहे हो। But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend campaign with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as a metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnet, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. अगर आप ये सोचते हो, आप सचमुच कृतज्ञ हो आपकी नौकरी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपने अगर कोई छुट्टी ली है तो उसके लिए, आज के दिन के लिए अगर आप खुश हो, अगर आपके पास कोई टैक्स रिफंड आया है उसके लिए आप दिल से कृतज्ञ हो, अगर आप अपने बच्चों के साथ वीकेंड पे अच्छा समय बिताया है उसके लिए कृतज्ञ हो, तो आप विश्वास करिए, ये जो फीलिंग है, ये जो भावनाएं हैं कृतज्ञता की, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करेंगी, ये एक मैग्नेट की तरह काम करेंगी और आपके जीवन में ऐसी और अच्छी चीजों को आप आकर्षित करोगे। और ये नियम है, आप मैग्नेट बन जाओगे अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए। ये ब्रह्मांड का नियम है, इस नियम को आप मत सोचिएगा कि ऐसे होता है या नहीं होता है। जैसे बारी चीज नीचे गिरती है, वैसे ही ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर आप खुश रहोगे तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, और कृतज्ञ रहोगे तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those things are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. आप लोगों ने सुना होगा, हर चीज जो आप जैसा देते हो वैसा आपको मिलता है, आप जो बोगे वही आप पाओगे। वॉट एवर गोज अराउंड, जो जाता है वही वापस आता है। ये सारी चीजें हमने बचपन से लेके आज तक सुनी है, और ये सारी चीजें एक ही नियम को, ब्रह्मांड के एक ही नियम को डिस्क्राइब करती हैं, जो हमारे साइंटिस्ट न्यूटन ने बताई थी। Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you सो apply, यस प्लीज गो ऑन, श्रेया जी पढ़ लीजिए आप। okay, when you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you've given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. न्यूटन की जो डिस्कवरी थी उसमें ये किया था, आप जैसा कार्य करते हो वैसा ही आपको मिलता है। और ये जो यूनिवर्सल लॉ है, ये कहता है कि जैसा आप एक्शन लेते हो, अगर आपने जो भी कार्य किया और दिल से कृतज्ञ होके किया, तो आपके पास वही चीज वापस आएंगी। वैसा ही आप ग्रेटफुल फील करोगे, वैसा ही आप कृतज्ञता फील करोगे, और आपके पास वो ही चीज लौट लौट के दोबारा आएंगी। अगर आज मेरे को मेरी तनख्वाह मिली और मैं उसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ कि थैंक यू मेरे को मेरी तनख्वाह मिली, ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आई, तो मेरे पास बार बार मेरी तनख्वाह टाइम पे आएगी और पूरी आएगी। थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल रीड। आरुषि मसंद। आरुषि दी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Yeah, thank you. I've done it. Good morning, Ravi Bhaiya. Good morning, Ankit Bhaiya. Good morning, everyone. So shall I begin? Yes. Yeah. The golden thread of gratitude. Am I audible? Yes, please. Yeah.
Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude to their core. सो ये हजारों साल से ये प्रथा चली आ रही है और जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसको पास ऑन करते आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए थे। हर रिलीजन में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जुडिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, हिंदुइज्म हो, हिंदुत्व हो, आप लोगों को ग्रैटिट्यूड हमारे कोर में है, हमारे नसों में कृतज्ञता है। हमारे को बचपन से ये सिखाया गया है, शुक्र कर शुक्र कर शुक्र कर। पर अभी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम वो सारी चीजें कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। इसलिए हम ये बुक पढ़ के वापस पुरानी चीजों को, पुराने संस्कारों को अपने अंदर लाएंगे। Muhammad said, "The gratitude for the abundance you've received is the best insurance that the abundance will continue." Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said, whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving things to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. Let me explain this, please. Okay. So मोहम्मद की टीचिंग में लिखा गया है कि जब जब आप कृतज्ञता देते हो हर चीज के लिए, आपके लिए वो बेस्ट इंश्योरेंस बन जाता है कि आपको भविष्य में वो चीजें मिलती रहेंगी। जो जो मिल रहा है उसके लिए थैंक्स बोलना एक इंश्योरेंस है कि आपको जीवन में वो सारी चीजें वापस मिलती रहेंगी। बुद्धा ने बोला दैट यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रैटिट्यूड। आपके जीवन में कोई और कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है तो आप ग्रैटिट्यूड लैक कर रहे हो। जिस दिन आपने ग्रैटिट्यूड और जॉय अपना लिया, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। लाओ टूज ने बोला कि अगर आपने जीवन में ग्रैटिट्यूड अपना लिया तो पूरा ये दुनिया, पूरा संसार आपका हो जाएगा। कृष्णा ने बोला है गीता में कि जो जो उनको मिला उन्होंने बड़ी खुशी से, बड़े जॉय के साथ उसको एक्सेप्ट किया और ग्रैटिट्यूड दिया। किंग डेविड ये कहता है कि मैं आसमान से लेके धरती तक, आसमान से लेके धरती तक जो कुछ है उसके लिए थैंक्स बोलता हूँ। और जीसस हर एक जादू जो वो करते थे, हर एक चमत्कार जो करते थे, उसको करने से पहले ही थैंक्स बोल देते थे। From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise, quote, when you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself, unquote. सो ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका तक, अफ्रीका से अमेरिका तक, अमेरिका से दुनिया के हर एक देश में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड की जो प्रैक्टिस है, कृतज्ञता की जो प्रैक्टिस है, वो सबके दिल में बसी पड़ी है। वो इतनी ज्यादा हर एक इंसान के खून में है। जो वो फॉलो करते हैं तो उनके साथ अच्छा होता है। शॉनी ने बोला कि जब आप सुबह को उठते हो तो सुबह को उठते ही थैंक यू बोलो। सुबह की जो लाइट आप देखते हो उसके लिए थैंक यू बोलो, वो आपको स्ट्रेंथ देती है। अंकित करता है ये रोज सुबह जाके सूरज के नीचे रोशनी लेके उसको थैंक यू बोलता है, उससे आपको जीवन मिलता है, उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। जो आप खाना खाते हो उसके लिए आप हो उसको आभार दो, जो आप जीवन जी रहे हो उसके लिए आप आभार दो। अगर आप इसके लिए थैंक यू नहीं बोल सकते और आपको कोई कारण नहीं दिखता है थैंक यू बोलने का, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमी है। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put
them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop Lake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln Young, Newton, Einstein, and many, many more. सो इतिहास गवाह है, इतिहास ये बताता है जिन जिन लोगों ने कृतज्ञता को अपने जीवन में बसा लिया वो एक बहुत अच्छी हिस्ट्री छोड़ के गए हैं, वो बहुत बड़े नाम बने हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, मदर टेरेसा हो, मार्टिन लूथर किंग हो, दलाई लामा हो, और बहुत सारे आइंस्टाइन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है क्योंकि उन्होंने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया है, क्योंकि उन्होंने कृतज्ञता के लिए रोज अपने जीवन में परिश्रम किया है। Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया कि आपने इतनी सारी डिस्कवरीज कैसे करी हैं, तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं सिर्फ दूसरे लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, मेरे साथ जितने लोग हैं, मेरे आसपास जितने लोग हैं, मैं सिर्फ उनको ग्रैटिट्यूड देता हूँ, और आज उनकी वजह से ही मैं सक्सेसफुल हूँ। वो दिन में 100 बार से ज्यादा थैंक यू बोलता था, ग्रैटिट्यूड देता था जिन लोगों ने उसके लिए काम किया, जो लोग उसके आसपास थे। It is any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein. Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे सक्सेसफुल हो गया, उसने अपने जीवन में इतनी सारी डिस्कवरीज कैसे कर ली? उसका एक ही कारण था कि वो हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करता था, कृतज्ञता को दिल से, थैंक यू दिल से बोलता था, फील करता था, और जैसे जैसे वो ये करने लगा उसको और बहुत कुछ मिलने लगा, ब्रह्मांड उसकी सारी ग्रैटिट्यूड पे और ग्रैटिट्यूड देता गया, उसके जीवन में और खुशियां देता गया, और वो एक बहुत सफल इंसान बना। When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. सो न्यूटन से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, आपकी सफलता का राज क्या है, और उसने अपना पूरा श्रेय जो है उन सारे लोगों को और उन सारी मेन और वुमेन, सारे आदमियों और औरतों को दिया जो उससे पहले थे, जो दुनिया में नहीं थे, उनको ये ग्रैटिट्यूड देता था, जो चले गए थे अपना शरीर छोड़ के, वो उनको ग्रैटिट्यूड देता था, हर एक चीज के लिए वो कृतज्ञ था। सारा का सारा श्रेय उसने अपनी इस आर्ट को दिया कि वो हमेशा से कृतज्ञ रहा है। The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Thank बड़े you. बड़े जो साइंटिस्ट थे, जो इन्वेंटर्स थे, जो डिस्कवरर्स थे, उन सब ने अपने पूरे काम का श्रेय सिर्फ ग्रैटिट्यूड को दिया। उनका जो ग्रैटिट्यूड का पावर था वो दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा था, और आप इस पावर को, आप इस ताकत को तभी समझ पाओगे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे। जिस दिन आपने इसको प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, आपको पता चल जाएगा कि इसकी ताकत क्या है, इसकी ताकत क्या है। Shall I continue or someone else wants Thank to? you, Arushi. I think we should give chance to other people because Yeah, बहुत सारे sure. Yeah, sure. Thank you so much, everybody. amazing reading. Thank you so much. Thank you, Ravitya. अंकित, किसको बुला रहे हो आप? चांदनी जैन। हेलो। ये दीदी।
My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. तो ये If अपनी I एक एक पैराग्राफ चांदनी, प्लीज लेट्स हैव वन पैराग्राफ, ओके। okay, जो ये रोंडा है ये अपनी एग्जाम्पल दे रही है, अपने कहानी के बारे में बता रही है, अपने जीवन के बारे में बता रही है कि मेरा जीवन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट उदाहरण है। जो लोग ग्रैटिट्यूड को इग्नोर करते हैं उनके साथ क्या होता है। तो मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, मेरी लाइफ की स्टोरी आपको समझाना चाहती हूँ। if I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure. I am grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. तो मेरे से अगर आप 6 साल पहले पूछते कि आप क्या कृतज्ञ इंसान हो, आपके मन में आभार है, तो मेरा जवाब ये था कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तो हूँ, मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरे को अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो मैं लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। अगर किसी ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया तब भी मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ। अगर मेरे लिए किसी ने थोड़ा सा भी काम किया तो उसको मैं थैंक यू बोल देती हूँ। The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. तो सच्चाई ये है कि मैं बिल्कुल भी कृतज्ञ इंसान नहीं थी। मेरे को मालूम ही नहीं था कि कृतज्ञ होना होता क्या है। सिर्फ थैंक यू बोलने से इंसान कृतज्ञ नहीं हो जाता। मैं सिर्फ ये सोचती थी कि थैंक यू बोल रही हूँ इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ, पर नहीं, थैंक यू बोलने से इंसान ग्रेटफुल नहीं हो जाता। My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. मेरी लाइफ में ग्रेटिट्यूड नहीं था और मेरे लाइफ में चैलेंजेस बहुत सारे थे। मैं लोन लेके डेब्ट में परेशान थी। हर महीना हर दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरे को बहुत काम करना पड़ता था पैसे कमाने के लिए, पैसे चुकाने के लिए। मेरे पास ना मेरे रिलेशनशिप अच्छे थे, मेरा ना लाइफ अच्छी थी, ना मेरे पास हैप्पीनेस थी, मेरे जीवन में खुशियां थी। मेरे लिए समय नहीं था लोगों के लिए, मेरी लाइफ में समय ही नहीं था। मैं परेशान रहती थी सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. And I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, पर रोज शाम को मेरे को ऐसा लगता था कि मैं थक चुकी हूँ और कोई भी नई बीमारी आती थी वो मेरे को लग जाती थी। स्वाइन फ्लू आया तो स्वाइन फ्लू लग गया, ये फ्लू आया तो वो फ्लू लग गया। मेरे पास खुशियाँ नहीं थी। मैं सोचती थी कि मेरे को खुशियाँ मिलेंगी जब मैं दोस्तों के साथ जाऊंगी, छुट्टी मनाने जाऊंगी, एक अच्छे बीच पे जाके रिलैक्स करूंगी। पर जब मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि उन छुट्टियों के लिए मेरे को पैसे चाहिए, तो मेरी सारी खुशियाँ उड़ जाती थी। I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck, and I would no sooner solve one life problem than more problem would appear. मैं जी नहीं रही थी, मैं बस सरवाइव कर रही थी। मैं अपने जीवन को बस खींच रही थी। रोज रोज के रोज मेरे को एक ही प्रॉब्लम आती थी कि इसका पैसा देना है, इसका पेमेंट करना है, ये आदमी मेरे से पैसे मांग रहा है, और मेरे जीवन में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती रहती थी। But then something happened that would change everything in my life from the day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed,
And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. Life truly became magical. और एक दिन एक चमत्कार हो गया, और वो दिन तब था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगी। और जिस दिन मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, मैंने कृतज्ञता को प्रैक्टिस करना चालू किया, मेरे लाइफ में सब कुछ बदल गया, मेरा जीवन जादू से भर गया। For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationship became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. मेरे More, जीवन में, ओके प्लीज चांदनी फिनिश कर दीजिए प्लीज। more than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. तो जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं डेब्ट फ्री हो गई, मैंने सारे लोन चुका दिए, मेरे जीवन में जो जो प्रॉब्लम थी वो खत्म होने लग गई, मेरे रिलेशनशिप, मेरा काम, मेरी हेल्थ बहुत सुधरने लग गए, मेरी एनर्जी का लेवल एक अलग चीज लेवल पे पहुंच गया। जब मैं 20-25 साल की थी तब भी मेरे में अंदर इतनी ऊर्जा नहीं थी जो अब होने लग गई, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने लग गए, मेरा परिवार, मेरे दोस्त मेरे को पसंद करने लग गए, मेरे पास समय आ गया उनके साथ बिताने के लिए। मैं इससे ज्यादा खुश हो नहीं सकती थी। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड की वजह से हुआ, सिर्फ कृतज्ञता की वजह से हुआ कि मेरा पूरा जीवन बदल गया, मेरे जीवन में चमत्कार आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच चांदनी। आई थिंक वी आर एट 7:30, हम आगे के चैप्टर नहीं पढ़ेंगे अभी, बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे को काम पे जाना होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर